My dear students, myself, Dr. Snehlata Singh, Associate Professor and Head, Department of Zoology, RLSY College, Ranchi. Today, I am going to start a new chapter of Semester 4 and Paper 8, the name Digestive System. Digestive system is a system where the digestion, absorption, assimilation and digestion of the food takes place. To complete all these functions, digestive system has two components which completes these functions, and these two components are, first one is alimentary canal and the second one is associated digestive gland. देन फर्स्ट वी कम टू एलिमेंट्री कैनाल. अब हम लोग दोनों कंपोनेंट को एक एक करके हम लोग देखते हैं. एलिमेंट्री कैनाल क्या है और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है. आज एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पार्ट्स होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, पूरा दूसरे लेक्चर में. तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है. एलिमेंट्री कैनाल इज एन इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम एन entrance opening mouth and ends also at an opening called anus. तो कहने का मतलब है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी स्टार्टिंग भी एक ओपनिंग से होता है जिसको माउथ कहते हैं, और जिसका एंड भी एक ओपनिंग से होता है जिसको एनस कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल हैविंग टू ओपनिंग्स इज कॉल्ड कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. इस टाइप के कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. ऑलमोस्ट most part of the alimentary canal is lined by endoderm. Then to perform the different functions, the alimentary canal is divided into four major zones. These zones are first ingressive zone. जैसा कि नाम है इनग्रेसिव जोन. इनग्रेसिव का मतलब ही होता है, सब जानते हो तुम लोग बच्चों, कि इनग्रेसिव का मतलब ही होता है टू एंटर. तो इनग्रेसिव जोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनटेक द फूड एंड इट क्रस्ट द फूड. सो इट इंक्लूड्स माउथ, बकल कैविटी और इनसाइड इट टंग एंड टीथ. सेकंड जोन इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव जोन. Progressive zone is responsible for the transportation of the food from one part of alimentary canal to the other part. It includes pharynx, esophagus and stomach, intestine, etc. Third zone is called digressive zone. Digressive का मतलब होता है डिजेनरेट होना, डिग्रेड होना. तो यहाँ पर किसका डिग्रेशन हो रहा है? फूड का. बिकॉज वी टेक द फूड इन कम्प्लेक्स form like protein, carbohydrate and the fat, and all of these complex food is converted into its simplest one, that means its monomer. And this conversion of complex food to the simplest one is also takes place in the some part of the alimentary canal or the some zones of the alimentary canal, and that zone is called digressive zone. It includes buccal cavity in mammal and reptile, not in all the vertebrates, and stomach and small intestine. Then last zone is called egressive zone. Egressive means to exit. In this zone, the undigested food particles or the materials are thrown outside, and the zone which is responsible for this function includes the large intestine and the anus. Then we come to the main function of alimentary canal. There are 5 main function of alimentary canal. कौन कौन सा 5 मेन फंक्शंस है? हम लोगों ने अभी देखा कि इसका डिफरेंट जोन है, हर एक जोन अलग अलग काम करता है. तो अब देखते हैं कि हर एक जोन में कौन कौन सा मेन काम हो रहा है. द फर्स्ट फंक्शन इज द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फूड. इस फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फूड में क्या होता है कि फूड का
फिजिकली शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। केमिकली फूड का नेचर वही रहता है, कोई उसका नेचर में कोई चेंज नहीं आता है, बट फिजिकल ऊपरी बनावट में उसका चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टेक द फूड लाइक ब्रेड, fruit, rice, etc. and etc. These foods are crushed inside the buccal cavity by teeth and mixed with mucus, and it is converted into paste-like structure. And this conversion from food into the paste-like structure is called the physical treatment of the food. Second function is the chemical treatment of the food. केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फूड के ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ था, केवल फिजिकल का फूड का रूप चेंज हो गया था। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। द केमिकल रिएक्शन अकर्स with the help of enzymes and the water. So the digestion is also called the hydrolysis process. During hydrolysis process, the food or the complex food material is converted into its simplest one. For example is the protein. It is the complex type of food, and this is converted into its simplest type, that is the amino acid. तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो फूड का कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, दैट मीन्स कि इस पॉलीमर जो है वो मोनोमर में बदल जाता है। जैसे प्रोटीन का मोनोमर एमाइनो एसिड हुआ, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर ग्लूकोज हुआ, लिपिड का मोनोमर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हुआ। तो इस तरह से अपना मोनोमर में हर एक कंस्टिट्यूएंट्स जो है अब मोनोमर में बदल जाता है, उसको कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द फूड। तो ये भी होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो कि स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ कुछ वर्टिब्रेट में, बकल कैविटी में भी होता है। देन द थर्ड फंक्शन इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो फूड जैसे कि बकल कैविटी में आया, बकल कैविटी से फायरिंग्स में, एसोफेगस में, इस तरह से फूड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होता है। और जिस मेथड से ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट होता है, दैट मेथड इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। तो सो ड्यू टू पेरिस्टालसिस मूवमेंट द फूड मूव from one part of the alimentary canal to the other part. So here we see that the transportation of the food also occurs inside the alimentary canal. And the fourth function is the absorption. Absorption मतलब कि हुआ कि फूड का एब्जॉर्ब्ड हो जाना एलिमेंट्री कैनाल में। The absorption of the food takes place after the chemical treatment of the food. जैसे ही केमिकल ट्रीटमेंट हुआ, फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदला, और सिंपल में बदलने के कारण वो क्या हो गया, सोलूबल फॉर्म में आ गया। तो फूड बिकम्स सोलूबल फॉर्म एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। वह किसका एब्जॉर्प्शन करता है? पचा हुआ फूड का, मोनोमर का, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड थे पॉलीमर के रूप में, उसका मोनोमर का ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। देन द लास्ट फंक्शन इज इजेशन। इजेशन मीन्स टू थ्रोन आउट। तो किसको ये थ्रोन आउट करता है बाहर की ओर, किसको एक्सपेल्ड करता है? एनी undigested food material which is harmful for the body are thrown out by the large intestine and the anus of the alimentary canal. तो यहाँ हम लोग इस तरह से क्या देखें कि 5 मेन फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल का है। अब हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो कितने एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट्स हैं? फर्स्ट माउथ एंड बकल कैविटी, सेकंड फायरिंग्स, थर्ड एसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट वन 6 लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट वी कम टू
mouth and buccal cavity. Mouth is an opening surrounded by upper and the lower jaw. Mouth opens inside a large cavity and that cavity is called the buccal cavity or the oral cavity. मुंह कहाँ खुलता है? एक बड़ा सा गैप में खुलता है. उस गैप को क्या कहते हैं? कैविटी लाइक होता है, उसको कहते हैं माउथ कैविटी या बकल कैविटी. इस माउथ और बकल कैविटी में दोनों जबड़ा में सेट ऑफ टीथ होते हैं और एक टंग होता है. द सेट ऑफ टीथ आर डिफरेंट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट. जितने भी वर्टिब्रेट है वो सब में अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल फ्रॉग में अलग होते हैं, रेप्टाइल्स में अलग होते हैं, फिर हमारे मैमल्स में ये अलग होते हैं, जो कि एक इसका अलग से पढ़ना है डेंटिशन, उसमें हम पढ़ाएंगे. इसके बाद एक टंग होता है. टंग को क्या देखते हैं? टंग also the shape and the size of the tongue is different in the different vertebrate series. सब में अलग अलग होते हैं. फिश ये नॉट फिश एम्फीबिया में फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एम्फीबिया को देखते हैं तो एम्फीबिया में हमारे मैमल से बिल्कुल अलग होता है. हमारे मैमल में टंग कैसे होते हैं? एंटेरियर पार्ट में ये फ्री होते हैं और पोस्टेरियर में जुड़े होते हैं. बट इन केस ऑफ द एम्फीबिया जस्ट रिवर्स कंडीशन इज फाउंड. In case of amphibia, anterior part of tongue is attached and the posterior part is free and the bifid. Bifid tongue होते हैं, but in case of mammal ये bifid नहीं होते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि टंग का बनावट भी हर एक वर्टिब्रेट में अलग अलग होते हैं. On the tongue, mainly two types of the glands are situated. That one is enzymatic gland and mucus gland. The mucus gland secrete mucus which mixed with the food and make them slippery so that it can easily pass from one part of alimentary canal to the other part. And enzymatic glands secrete enzymes which helps in digestion of the food. लेकिन सभी में enzymatic gland नहीं होते हैं. जिस फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग देखें एम्फीबिया के साथ अगर तुलना करते हैं तो देखते हैं कि एम्फीबिया में और फिश में क्या होते हैं कि यहाँ एंजाइमेटिक ग्लैंड नहीं होते हैं, वहाँ म्यूकस ग्लैंड होते हैं. और एंजाइमेटिक ग्लैंड हमारे क्या मैमल्स में एंजाइमेटिक ग्लैंड होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं. इसके अलावा टंग के ऊपर टेस्ट बड्स भी होते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टेस्ट बड? The function of taste bud is to taste the food whether it is edible or not. क्या देखते हैं कि ये फूड जो है कौन सा फूड खाने वाला है और कौन सा फूड नहीं खाने वाला है, उसका जजमेंट कौन करता है? तो टेस्ट बड करता है, which is situated on the tongue. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बकल कैविटी में इतने सारे स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट होते हैं. एक और मेन स्ट्रक्चर्स है जिसको कहते हैं two openings, that one is the glottis and the gullet, which is also present in the buccal cavity. लेकिन सभी वर्टिब्रेट में बकल कैविटी में नहीं होते हैं. उसी वर्टिब्रेट के बकल कैविटी में होते हैं जिसमें नेक नहीं होता है. फॉर एग्जांपल इज द फ्रॉग का ले लीजिए. फ्रॉग में नेक नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ द नेक. क्या है कि इसका बकल कैविटी में ही ये दोनों ओपनिंग होते हैं, गलेट का और ग्लोटिस का. अब सवाल उठता है कि ये गलेट और ग्लोटिस क्या है? तो गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द फूड पाइप. गलेट क्या है कि जो फूड हमारे बकल कैविटी में आया, क्रस्ट हुआ, वो फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा गलेट के थ्रू से. तो बकल कैविटी के बाद का जो पार्ट्स है वो फायरिंग्स में जाएगा गलेट से. और ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ द एयर पाइप. एयर पाइप क्या है? ट्रैकिया. तो ट्रेकिया जो है बकल कैविटी में जो खुलता है जिस ओपनिंग से, उसको ग्लोटिस कहते हैं. और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप एक होता है जिसको इपिग्लोटिस कहते हैं. इपिग्लोटिस का काम है कि ग्लोटिस को बंद कर देना. कब? जब फूड बकल कैविटी में आ रहा है तब. क्योंकि अगर वो खुला रहेगा तो फूड का एयर पाइप में इंटर करना पॉसिबल हो जाएगा, मे बी कि वो उसमें घुस सकता है.
तो उसको रोकने के लिए जब भी फूड बकल कैविटी में आता है तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि ग्लोटिस को बंद कर देता है। लेकिन एक याद रखने वाली बात है कि ये किस वर्टिब्रेट्स में होगा जिसमें नेक नहीं होगा, लेकिन हम लोगों में तो नेक है ना। तो जिन जिन वर्टिब्रेट में नेक है, जैसे हम लोग में है, रेप्टाइल्स में है, तो जहाँ जहाँ कुछ रेप्टाइल्स सब में नेक है, तो जिन जिन मतलब यही याद रखना है कि जिन जिन वर्टिब्रेट्स में नेक है, स्पेशली हम मैमल को लेकर चल रहे हैं, उसमें क्या होता है कि बकल कैविटी एंड द ग्लोटिस इज प्रेजेंट इन द फायरिंग्स, नॉट इन द बकल कैविटी, है ना। बकल कैविटी में जिसमें नेक नहीं है वहाँ होता है, लेकिन जिसमें नेक है वहाँ क्या होता है, फायरिंग्स में होता है। दैट मीन्स द फायरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर द फूड एज वेल एज द एयर। एकदम याद रखने वाली बात है, बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हिच वन इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर और द कॉमन कैविटी फॉर फूड एंड एयर। तो क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा फायरिंग्स, मैमल में। तो फायरिंग्स में दोनों के दोनों चीज़ आता है, क्रस्ट फूड भी आता है और जो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, तो ये श्वास के जरिए जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी आता है कहाँ, फायरिंग्स में। तो जब दोनों के दोनों आता है तो दोनों के दोनों का तो अलग अलग पाइप है। तो फूड इंटर्स इनसाइड द एसोफेगस, ठीक है, थ्रू द गलेट, एंड एयर इंटर्स इनसाइड द ट्रेकिया थ्रू द ग्लोटिस। और यहाँ भी एपिग्लोटिस होता है, जो कि जब हमारा फूड फायरिंग्स में आता है तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि ग्लोटिस को क्लोज कर देता है, बिकॉज कि अगर खुला रहेगा तो फूड इसको इंटर हो जाएगा। तो इसलिए कि फूड को एंट्री ना हो, एपिग्लोटिस क्या करता है कि उसको बंद कर देता है। क्लियर? देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल, फायरिंग्स, जो कि फायरिंग्स के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो फायरिंग्स इज द वेरी शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज लाइंड बाई एंडोडर्म। इट हैज़ नो एनी ग्लैंड, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। सो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन एनी वर्टिब्रेट। याद रखना है किसी भी वर्टिब्रेट में यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ नहीं होता है। तो यहाँ केवल ये फूड पैसेज का काम करता है। बकल कैविटी से फूड आया फायरिंग्स में और फायरिंग्स से फूड फिर आगे की ओर एसोफेगस में जाएगा, ठीक है। देन वी कम टू एसोफेगस। द एसोफेगस इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, narrow long tube like structure, and here the structure of esophagus is also different in different vertebrate. For example, in case of frog and fishes it is very small, but in case of the bird the esophagus is converted into a large sac like structure, and that one is called crop. चिड़िया ये सब बर्ड्स में क्या होता है कि एसोफेगस एक साइक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्रॉप कहते हैं। और इस क्या करती है कि क्रॉप एक्ट्स एज द स्टोरेज ऑर्गन फॉर द ग्रेन्स। तो चिड़िया जो भी ग्रेन्स को चुनती है वहीं पर आकर के अपना क्या करती है कि स्टोर्स करके रखी रहती है। बट इन केस ऑफ द मैमल एंड द रेप्टाइल्स एक्सेट्रा, दिस esophagus is the long and it passes through the thoracic cavity, diaphragm, and then it opens inside the stomach, because the next part of the esophagus is the stomach. But here also no digestion takes place due to absence of digestive gland. यहाँ भी कोई digestive gland नहीं होते हैं, so no digestion takes place inside the esophagus. And the wall of the esophagus is formed by the both types of the muscles, जो कि मसल्स की पढ़ाई हो चुकी है सेमेस्टर 3 में। तो कौन कौन दोनों तरह के मसल्स होते हैं? स्ट्राइप्ड मसल्स एंड द अनस्ट्राइप्ड मसल्स। Anterior part of the esophagus is formed by striped muscles. Middle part of the esophagus is formed by striped as well as unstriped muscles, and the posterior part of esophagus is formed by अनस्ट्राइप्ड मसल्स ओनली। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट
part of alimentary canal. That one is the stomach, small intestine and the large intestine. यही इतना बचा जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंप्लीट कर दूंगी. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.